شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ میرا نام ماہم ہے، ہم 5 بہنیں ہیں اور میرا ایک بھائی ہے۔ بھائی سب سے بڑا ہے، اس کا نام علی ہے۔ میرے ابو ایک فیکٹری میں کام کرتے ہیں۔ میرے ابو کی خواہش ہے کہ ہم بہن بھائی زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کریں۔ بھائی یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے اور اس کی تعلیم کا آخری سال ہے۔ ایک دن ابو گھر آئے، کچھ دیر کے بعد ان کی طبیعت کافی خراب ہو گئی۔ امی اور بھائی ابو کو لے کر ہاسپٹل گئے۔ ڈاکٹر نے ابو کا چیک اپ کیا اور بتایا ابو کے دل کے 3 وال بند ہیں، اور ڈاکٹر نے یہ بھی کہا کہ ان کا آپریشن جلدی کروا لیں۔ آپریشن کروانے میں دیر نہ کریں۔ پھر امی نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ آپریشن کے لیے کتنے پیسوں کی ضرورت ہوگی۔ ڈاکٹر نے کہا آپ لوگ 5 لاکھ کا انتظام کر لیں۔ یہ سن کر امی اور بھائی پریشان ہو گئے۔ امی نے رشتہ داروں سے پیسوں کی بات کی تو سب نے انکار کر دیا اور کہا کہ ہمارے مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ پھر بھائی نے امی کو بتایا کہ بھائی کے دوست نے بتایا ہے کہ کچھ لوگ سود پر قرض دیتے ہیں۔ پھر بھائی نے امی کو سمجھایا کہ اگر ہم ان سے 5 لاکھ لیتے ہیں تو 1 لاکھ کے بدلے میں 5,000 سود لیں گے۔ بھائی نے کہا اگر ہم 5 لاکھ لیتے ہیں، جب تک ہم 5 لاکھ واپس نہیں دیں گے ہمیں ہر ماہ انہیں 5,000 دینے ہوں گے۔ پھر امی نے کافی سوچنے کے بعد بھائی کو اپنا زیور دیا اور کہا کہ اسے بیچ دو۔ بھائی نے زیور بیچ دیا اور گھر آ کر امی کو بتایا کہ 2 لاکھ ملے ہیں۔ پھر امی نے کہا کہ 3 لاکھ سود والوں سے لے لو۔ امی نے کہا کہ تمہارے ابو کی زندگی بچانے کے لیے یہ کرنا ہوگا۔ پھر ہم نے وہ پیسے ڈاکٹر کو دے دیے۔ ابو کا آپریشن کامیاب ہو گیا۔ ابو ابھی ہاسپٹل میں ہی تھے۔ آپریشن کو ہوئے 2 دن ہی ہوئے تھے کہ ابو کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی۔ ڈاکٹر بھی ابو کی حالت دیکھ کر پریشان تھے۔ ڈاکٹروں نے ابو کو بچانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے اور ابو اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ہم پر تو جیسے غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ ابو کی وفات کے چند دنوں کے بعد بھائی کا رزلٹ آیا۔ بھائی نے بہت اچھے نمبروں سے امتحان پاس کیا تھا۔ پھر بھائی نے جاب کے لیے کوشش شروع کر دی۔ بھائی صبح نکل جاتا اور شام کو گھر آتا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد بھائی نے آ کر امی کو بتایا کہ مجھے جاب مل گئی ہے۔ یہ سن کر امی اور ہم بہنیں بہت خوش ہوئیں۔ پھر صبح بھائی جاتا اور شام کو گھر آتا تھا۔ پھر میں نے غور کیا کہ بھائی کے ہاتھ میں ہمیشہ ایک بیگ ہوتا ہے۔ میں جب بھی بھائی کو آواز دیتی، لیکن بھائی میری بات کا جواب نہ دیتا۔ یہاں تک کہ امی بھی بلاتی تو وہ جواب نہ دیتے، بلکہ انہیں تو کمرے میں جانے کی بہت جلدی ہوتی تھی۔ پھر وہ واپس آ کر کہتے کہ سوری، میں کمرے میں بیگ رکھنے گیا تھا۔ میں نے پوچھا بھائی بیگ میں کیا ہے؟ بھائی نے کہا آفس کی ضروری کاغذات ہیں، مجھے رات کو ان پر کام کرنا ہے۔ یہ سن کر میں چپ ہو گئی۔ پھر ایک دن بھائی 9 بجے کے قریب گھر آئے تو ان کے ہاتھ میں وہی بیگ تھا۔ اچانک بھائی کا فون آ گیا۔ بھائی فون سننے لگے۔ بیگ انہوں نے زمین پر رکھ دیا۔ میری چھوٹی بہن کے دل میں نہ جانے کیا آیا۔ اس نے بیگ کی زپ کھولنے کے لیے ابھی بیگ کو ہاتھ ہی لگایا تھا کہ بھائی کی نظر اس پر پڑ گئی۔
भाई ने फौरन बैग पकड़ लिया और गुस्से से कहा कि आइंदा मेरे बैग को हाथ मत लगाना। मैंने आज तक भाई को कभी इतने गुस्से में नहीं देखा था। मैं हैरान थी कि बैग में ऐसा क्या है जो भाई इतने गुस्से में आ गए। अब तो मुझे भी तजस्सुस होने लगा था कि देखूं कि बैग के अंदर क्या है। फिर अम्मी भाई से अक्सर कहती कि तुम ऑफिस से इतना लेट क्यों आते हो। ये कैसा ऑफिस है जो सुबह खुलता है और रात को देर तक बाद बंद होता है। 11 बजे, क्योंकि भाई कभी 12 बजे घर आते थे। भाई ने अम्मी से कहा कि मैं ओवर टाइम करता हूँ। फिर अम्मी ने बताया कि महम के सालाना इम्तिहानात शुरू होने वाले हैं और फिर कुछ दिनों के बाद मेरे इम्तिहानात शुरू हो गए और मैं देर तक पढ़ती थी। एक रात मुझे पढ़ते हुए रात के 2 बज गए। मैं सोने ही वाली थी कि मेरे जहन में आया कि भाई के कमरे में जाकर देखूं कि बैग के अंदर क्या है। मैं भाई के कमरे में गई तो ये देखकर हैरान रह गई कि कमरे में भाई नहीं है और बैग भी नहीं। इतनी देर में मुझे दरवाजा खुलने की आवाज आई। मैं समझ गई कि भाई आया है। मैं फौरन भाई के कमरे से चली गई। सुबह मैंने भाई से पूछा कि रात को आप इतना लेट क्यों आए थे। भाई ने कहा कि मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था, मैं हॉस्पिटल में था। ये सुनकर मैं खामोश हो गई। कुछ दिनों के बाद एक रात में पानी पीने के लिए उठी और मैं किचन में जा रही थी। मैंने भाई को आते हुए देखा। उस वक्त रात के 3 बज रहे थे। मैंने भाई से पूछा कि खैरियत, आज फिर आप इतना लेट हो गए। भाई ने कहा मेरी बाइक खराब हो गई थी। रात के टाइम मुझे कोई मैकेनिक नजर नहीं आ रहा था। सब शॉप बंद हो गई थी, इसलिए घर पैदल आया हूं। घर लेट आना भाई का मामूल बन गया था और मैं जब भी भाई से घर लेट आने की वजह पूछती तो भाई कोई ना कोई बहाना बना देते। लगता था कि जैसे वो बहाना सोच कर ही घर में दाखिल होते हैं। बस अब ये जानना मेरा जुनून बन गया था कि भाई के बैग के अंदर क्या है और वो घर लेट क्यों आते हैं। फिर एक सुबह मैंने अम्मी से पूछा कि भाई कहाँ है। अम्मी ने कहा वो नहा रहा है। बस इस मौके को मैंने गनीमत समझा और फौरन भाई के कमरे में आ गई। मैंने हर जगह बैग तलाश किया लेकिन वो मुझे ना मिला। फिर मेरी नज़र भाई के कमरे में पड़ी अलमारी पर पड़ी। मैं समझ गई कि भाई ने बैग अलमारी में रखा है, लेकिन जो ही मैंने अलमारी खोलने के लिए हाथ बढ़ाया तो मैं ये देखकर हैरान रह गई कि भाई ने अलमारी को ताला लगाया हुआ था। भाई ने आज तक अलमारी को कभी ताला नहीं लगाया था। अब तो मेरा सर चकरा रहा था और मैं सोच रही थी कि इस अलमारी और बैग में ऐसा क्या है जो भाई को अलमारी को ताला लगाना पड़ता है। अब तो मैंने दिल में पक्का इरादा कर लिया था कि मैं अलमारी की चाबी हासिल करके ही रहूंगी और देखूंगी कि अलमारी में क्या है। फिर मैं दिन रात चाबी की खोज में लग गई और अल्लाह ने भी मेरा साथ दिया। एक दिन मैं कपड़े धो रही थी। अम्मी ने कहा कि अली के वॉशरूम में कुछ पैंटें पड़ी हैं, वो धो देना। मैं अली भाई के वॉशरूम से पैंटें लेने आई। मेरी आदत थी कि मैं जब भी पैंटें धोती तो पॉकेट जरूर चेक करती ताकि कोई जरूरी कागज या पैसे वगैरह ना धुल जाएं। लेकिन मुझे पॉकेट में से उस दिन एक चाबी मिली। मेरे जहन में फौरन आया कि ये अलमारी के ताले की चाबी तो नहीं। मैं फौरन भाई के कमरे में आई और चाबी को ताले में घुमाया। ताला खुल गया। फिर मैंने डरते हुए अलमारी खोली तो उसके अंदर देखकर मेरी रूह कांप गई, क्योंकि अलमारी के अंदर 20 के करीब खूबसूरत और महंगे वाले फैंसी सूट पड़े थे और उसके साथ ही
20 के करीब नेल पॉलिश और 15-20 लिपस्टिक पड़ी थी और दूसरा मेकअप का सामान भी था और कुछ ज्वेलरी भी पड़ी थी और कुछ लंबे बालों वाली विगें पड़ी थी। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। फिर मैंने फौरन अलमारी बंद कर दी और अम्मी और बहनों से इस बात का जिक्र ना किया। अम्मी का ब्लड प्रेशर पहले ही हाई रहता था। मैं नहीं चाहती थी कि अम्मी की तबीयत खराब हो। मैं पहले भाई से बात करना चाहती थी। जब रात को भाई घर आया, थोड़ी देर के बाद उसने मुझे आवाज दी, माहम मेरी पैंटें कहाँ हैं? मैंने कहा मैंने धो दी। भाई बहुत परेशान लग रहा था। चाबी मेरे हाथ में थी। मैंने कहा आपको ये चाहिए? भाई ने चाबी फौरन मेरे हाथ से ले ली। मैंने कहा भाई मुझे सब पता चल गया है, अब आप मुझे सब सच सच बताएं कि ये सब क्या है। ये सुनकर भाई रोने लगा और कहने लगा, तुम्हें याद है जब मैं नौकरी की तलाश में जाता था, सुबह जाता था शाम को आता, लेकिन मुझे नौकरी नहीं मिलती थी। अगर मिलती तो 15-20 हजार रुपए की। भाई ने कहा तुम तो जानती हो हमने अब्बू की बीमारी के लिए 3 लाख कर्ज लिया था। हर महीने 15,000 सूद देना था और साथ कर्ज भी उतारना था। तुम लोगों की स्कूल और कॉलेज की फीसें, घर का खर्च, अम्मी की दवाइयों का खर्च, बिल वगैरह, ये सब कुछ इतनी तनख्वाह में मुमकिन नहीं था। मैं जिस बस स्टॉप पर खड़ा होकर बस का इंतजार करता था, वहां पर एक सिगरेट पान वाले की दुकान थी। एक दिन उसने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, मैं तुम्हें रोजाना देखता हूँ, तुम मुझे बहुत परेशान लगते हो बेटा। फिर मैंने उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसी जगह को जानता हूँ जहाँ पर तुम्हें इतने पैसे मिल जाएंगे जितने तुम चाहते हो, और मुझे ऐसी जगह पर वो ले गए जहाँ पर 10-15 लड़के थे। वो लड़के लड़कियां बनकर शादियों पर और मुख्तलिफ फंक्शंस पर नाचते यानी डांस करते थे। फिर भाई ने बताया कि मैं सुबह वहां जाकर दूसरे लड़कों के साथ डांस की प्रैक्टिस करता था। फिर रात को हम 4-5 लड़के एक फंक्शन पर चले जाते थे और 4-5 दूसरे फंक्शन पर। और भाई ने ये भी बताया कि मैं इस बैग के अंदर अपने कपड़े, ज्वेलरी और मेकअप का सामान लेकर जाता था। भाई ने कहा ये सब कुछ मैंने अपनी बहनों और माँ के आराम और सुकून के लिए किया था। भाई ने कहा मैं चाहता था कि मेरी बहनों को कभी बाप की कमी महसूस ना हो। ये सब सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं भी रोने लगी। फिर मैंने भाई से कहा कि आज के बाद आप ये काम नहीं करेंगे। फिर भाई ने कहा कि घर का खर्च कैसे चलेगा। मैंने कहा भाई आप तो जानते हैं कि मेरा रिजल्ट आ गया है, मैंने बहुत अच्छे नंबरों से इम्तिहान पास किया है। मैंने कहा भाई आपको मेरी यूनिवर्सिटी वाली दोस्त आलिया याद है? उसके भाई की बहुत बड़ी फर्म है। मैंने उसे जॉब के लिए कहा था। आज दोपहर को ही उसका फोन आया था। उसने कहा मैंने भाई से तुम्हारी जॉब की बात कर ली है, कल से तुम ऑफिस आ जाना। कल मेरी जॉब का पहला दिन है। माहम ने कहा भाई आप परेशान ना हो, मैं चंद दिनों के बाद आपकी जॉब के लिए भी बात करूंगी। आज पूरा 1 साल हो गया है मैं और मेरा भाई आलिया के भाई की फर्म में जॉब कर रहे हैं। घर के हालात बिल्कुल ठीक है। अब अम्मी चाहती है कि मेरी और अली भाई की शादी हो जाए, लेकिन अली भाई ने कहा कि वो पहले बहनों की शादी करेंगे फिर अपनी। आज हम सब बहनों की शादियां हो चुकी हैं और हम अपने घर में बहुत खुश हैं। अली भाई की शादी मेरी दोस्त आलिया के साथ हो चुकी है और उनके 2 बच्चे भी हैं। आलिया बहुत ही अच्छी बीवी और बहू साबित हुई। उसने हमारे घर को जन्नत बना दिया। अब अम्मी, अली भाई और आलिया
सब हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।